Hello students and welcome to today's class. In the previous class we were discussing about the sex linked inheritance and we have seen two examples of sex linked inheritance in case of humans जो कि थे आपके हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस एंड we have seen कि how the characters are transmitted which are present on the X chromosome. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे today's topic is linkage. Now, this linkage is a genetic interaction. Genetic interaction matlab this is one mechanism, or you can say this is a process, or this is a phenomenon where you will find ki certain genes they do not separate away. They are linked to one another and they are transmitted together. इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सेप्शन है आपके मेंडल्स लॉ का, बिकॉज मेंडल्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इट स्टेट्स दैट all the genes during the transmission they assort independently of one another. ठीक है, लेकिन लिंकेज बोलता है कि सारे जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते हैं, कुछ जीन्स एक साथ लिंक होके रह जाते हैं और एक ही साथ नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनन called as linkage. Now let's see the definition of linkage. Linkage is the property of certain genes present on the same chromosome to inherit together without assorting independently. इस definition में दो चीज आप लोग मार्क कीजिए. Just observe two things. First thing, it's the property of certain genes present on the same chromosome. ये point important है, on the same chromosome. मतलब link genes हमेशा same chromosome में ही होना चाहिए. Second thing, दे इनहेरिट टुगेदर, वो एक साथ इनहेरिट होंगे विदाउट असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली. मतलब एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इनफैक्ट दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. इनफैक्ट बोथ ऑफ देम विल बी ट्रांसमिटेड टुगेदर. वो सेपरेट नहीं होंगे, एक ही साथ नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे. दे शुड बी ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे शुड बी इनहेरिटेड टुगेदर. Now this was discovered by T.H. Morgan. हम लोग T.H. Morgan के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. He has made a lot of contributions to the field of genetics, and the sex-linked inheritance that we studied prior to this was also his contribution. He also contributed this specific phenomenon. He discovered this specific phenomenon called as linkage while he was working with Drosophila. Drosophila melanogaster, आप लोग जानते हैं, that is the fruit fly. Okay. Now he crossed a yellow-bodied white-eye mutant female with a brown-bodied red-eye wild male and intercrossed their F1 progeny. तो उन्होंने क्या किया, इससे पहले जो हम लोग देखे थे, we saw कि white-eye male appeared in the population of red-eye individuals, and T.H. Morgan crossed the white-eye male with the red-eye female for subsequent generations. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो दो कैरेक्टर्स ले लिए. ठीक है, जैसे आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, वैसे ही दो कैरेक्टर्स ले लिए, येलो बॉडी व्हाइट आई म्यूटेंट फीमेल एंड क्रॉस्ड इट विथ ब्राउन बॉडी रेड आई वाइल्ड मेल. तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिए, कौन सा, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल. सो बॉडी कलर आई कलर, दो कैरेक्टर्स एक साथ, जैसे हम लोग वहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखे थे, द कलर ऑफ द सीड एंड द टेक्सचर ऑफ द सीड. So when he made a cross like this, what did he find in the next generation? He observed that the two genes did not segregate independently of each other. Instead, were inherited together to the next generation. मतलब body color का gene जो है, that is yellow body and white eye, brown body and red eye, जो दो combinations लिए थे, तो body color का जो gene है वो eye color gene के साथ एक ही साथ transmit हो रहा है next generation में. ये दोनों कैरेक्टर्स सेपरेट नहीं हो रहे हैं. Which two characters? The color of the body and the color of the eye. So here it becomes an exception of the third law of Mendel. Mendel का जो थर्ड लॉ है उसी का एक्सेप्शन बन जाता है. Now remember students one thing, कि हम लोग जो ये laws of Mendel पढ़े हैं, that is universally applicable. Okay, that is correct कि वो universally applicable होता है, लेकिन हर एक लॉ का कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहता है. तो ये उसी तरह एक एक्सेप्शन है ऑफ द थर्ड लॉ. Okay, such genes are called as linked genes. तो मेंडल ने उसको नाम दे दिया, सॉरी मॉर्गन ने उसको नाम दे दिया linked genes. मतलब they are linked to one another, they will not be separated, they will stay together. उसीलिए उनको नाम दे दिया गया linked genes. कभी कभी वो लोग ग्रुप में भी होते हैं और उनको लिंकेज ग्रुप्स बोला जाता है. I have not mentioned it on the slide,
बट रिमेंबर समटाइम्स दिस जीन्स विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ऐसे दो दो जीन्स नहीं, वैसे बहुत सारे जीन्स एक साथ भी हो सकते हैं, तो वहां पे उनको बोला जाएगा लिंकेज ग्रुप्स, दे विल बी कॉल्ड एज लिंकेज ग्रुप्स। आई जस्ट राइट इट डाउन, linkage groups if there are more than two genes which are inherited together, so they will be called as linkage groups। और हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर के लिंकेज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लिंकेज कैसे होता है, लेट अस ऑब्जर्व। तो वी विल गो इनटू अ स्लाइड वेयर देयर इज दिस स्पेसिफिक डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस किया गया है दो इंडिविजुअल्स का, एक तरफ क्रॉस ए है, दूसरी तरफ क्रॉस बी है। देखिए इसको समझने में बहुत सारे इंडिविजुअल्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आपका एनसीईआरटी बुक जो है उसमें भी ये डायग्राम है। इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। आपका क्रॉस ए जो है इसको बीच में मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, और यहाँ पे जो क्रॉस बी है इसके बीच में भी एक लाइन खींच देता हूँ, इससे आपको समझने में इजियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, अब देखिए पहला जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है येलो व्हाइट, मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई जीन जो है वो था फीमेल का, येलो स्मॉल वाई बिकॉज आपका रेसेसिव जीन है येलो, और ये है स्मॉल डब्ल्यू जो आपका व्हाइट आई है, ठीक है, येलो बॉडी व्हाइट आई। whereas जो वाइल्ड मेल लिया था उन्होंने Y प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, Y प्लस विच विल बी द वाइल्ड टाइप, विच मीन्स यहाँ पे आपका हो गया ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ठीक है, Y प्लस W। ना ये जीन्स को आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से ये लोग ट्रांसमिट होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर इसमें कहीं पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कुछ जीन्स हैं जो एक साथ ही ट्रांसमिट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास येलो डब्ल्यू कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये क्रोमोसोम अगर दिस क्रोमोसोम विथ दिस एंड दिस क्रोमोसोम विथ दिस, दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों एक साथ हुए, लेट मी क्लियर इट आउट अगेन, अगर ये दोनों एक साथ हुए, नाउ दिस फीमेल एंड दिस मेल क्रोमोसोम एक साथ अगर ट्रांसमिट हुए, आपका नेक्स्ट जनरेशन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये YW Y plus W plus YW Y plus W plus। Now this gamete of the female can merge with this gamete of the male। तो यहाँ पे YW है और यहाँ पे भी है, क्रोमोसोम Y है, तो YWY ये हो गया आपका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। सो दिस इज F1 जनरेशन। लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है, सपोज किसी तरह से रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। सपोज you'll find कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन दिस Y एंड दिस Y। इससे क्या होगा, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे एक्सचेंज होंगे, ये जो Y प्लस है वो ऊपर आ जाएगा इनटू दिस क्रोमोसोम, और ये जो Y है वो Y प्लस की जगह में चला जाएगा इनटू दिस क्रोमोसोम, ठीक है। तो अभी आपका ऊपर का जो क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन है ये YW था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने के बाद Y प्लस W हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं Y प्लस W, ऊपर का क्रोमोसोम का कॉन्फ़िगरेशन, और नीचे के क्रोमोसोम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा YW प्लस आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो अगर ये Y प्लस W YW के साथ एक गैमेट फॉर्म करता है, इफ दिस Y plus W and this YW forms a gamete, you will have a combination, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, you will have a combination like this। क्या कॉम्बिनेशन है आपका, Y plus W plus YW। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं this one Y plus W and YW, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन Y plus W YW। लेकिन ये Y प्लस W Y क्रोमोसोम के साथ भी कर सकता है, तो Y प्लस W Y क्रोमोसोम। सिमिलरली ये YW प्लस जो है YW के साथ कर सकता है, YW प्लस YW के साथ एक कॉम्बिनेशन, या फिर नीचे का जो YW प्लस है वो नॉर्मल Y क्रोमोसोम के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सो YW प्लस कैन फॉर्म ए बॉन्ड विथ और गैमेट विथ द नॉर्मल Y क्रोमोसोम। तो ये चार कॉम्बिनेशंस जो हैं, रिमेंबर दिस फोर कॉम्बिनेशंस दैट आर देयर, दे आर बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, इफ इट डज नॉट टेक प्लेस और नॉर्मल रह गया, आपका ऊपर का क्रोमोसोम YW रहा
और नीचे का क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ का YW रहा और ये Y प्लस W प्लस रहा, तो ये 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। YW YW ये क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ओके, इफ देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सब क्लियर कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड नो रिकॉम्बिनेशन। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर ओके विद कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद कैसे हो रहा है पता चल गया आपको। I'll clear it out now to understand। अगर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो ये YW ये YW, अगर ये दोनों का गैमेट फॉर्म होता है तो जाइगोट विल बी समथिंग लाइक दिस, YW YW। सिमिलरली Y प्लस W प्लस विथ YW, ठीक है, तो ये Y प्लस W प्लस विथ YW, अगर इसको लेते हैं तो Y प्लस W प्लस विथ YW, ये एक हो सकता है कॉम्बिनेशन। क्लियर। अगर हम लोग YW एंड क्रोमोसोम Y लेते हैं तो YW विथ क्रोमोसोम Y, दैट कैन आल्सो बी ए कॉम्बिनेशन, राइट। अगर हम लोग Y प्लस W प्लस और क्रोमोसोम Y लेते हैं, दैट कैन बी दिस कॉम्बिनेशन, Y प्लस W प्लस विथ क्रोमोसोम Y। तो ये जो है इसके बीच में मैं लाइन ड्रॉ करने का मेन इंटेंशन था। अगर इसको यहां से बीच से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नाउ रिमेंबर दिस साइड वॉट एवर इज देयर, दिस मच, इस सेगमेंट में जो भी आपका है ये सारा है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तो आपका इस टाइप का जीनोटिपिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ और लिंकेज हो गया तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो Y और W क्रोमोसोम है, F1 जनरेशन में वैसे ही थे, पेरेंटल जनरेशन में वैसे ही थे, अब F2 जनरेशन में भी वैसे ही है। मतलब क्या, ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग सेपरेटेड अवे, दे आर बीइंग ट्रांसमिटेड टुगेदर, सो दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। सिमिलरली आप ये YW को ले लीजिए, सॉरी Y प्लस W प्लस, Y प्लस W प्लस यहां भी है, अब Y प्लस W प्लस F1 जनरेशन में भी है, Y प्लस W प्लस F2 जनरेशन में, मतलब ये दोनों जीन्स एक ही साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सेपरेट आउट नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट सेपरेटिंग आउट। इसीलिए देखिए पेरेंटल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 98.7% है, रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% है। सो इससे ये पता चलता है कि ये जो दो जीन्स हैं यहाँ पे YW और Y प्लस W प्लस, दे विल टेंड टू रिमेन टुगेदर, दे विल नॉट सेपरेट, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज, इसको बोला जाता है लिंकेज। ठीक है, ना उसी के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हम लोग देख लेते हैं। मॉर्गन फाउंड दैट व्हेन जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड व्हाइल अदर्स वर वीकली लिंक्ड। जब ये लिंकेज होता है तो कुछ जीन्स होते हैं जो टाइटली लिंक होते हैं, मतलब वो बहुत जनरेशन तक एक साथ ट्रांसमिट होते रहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो एक दो जनरेशन तक ट्रांसमिट होंगे उसके बाद फिर सेपरेट हो जाएंगे, वो लोग वीक होते हैं। तो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग लिंकेज को दो टाइप में डिवाइड कर लिए हैं। ओके, so based on that the linkage is divided into two types, that is complete linkage, if the genes are transmitted for more than two generations together without separating, usko complete linkage bola jata hai। But if within two generations the genes which are linked together separate away, that is called as incomplete linkage। तो based on that linkage को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं, linkage which is transmitted together for more than two generations, complete linkage, and the linked genes which are only transmitted for one or two generations and they separate away, incomplete linkage। ये एक brief definition है, इसका एक अलग सा मतलब detailed definition भी है, I am not going into that। अब मैं आपको एक simplified version इसका बता रहा हूँ because आपके कोर्स सिलेबस में complete और incomplete linkage का ज्यादा डिटेल्स में नहीं है, तो will not go into much details। ठीक है। Now lineage, this is another term that you need to remember। lineage is the physical association of a gene on the chromosome। lineage का मतलब होता है फिजिकली कैसे एक जीन एक क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हमारे कैरेक्टर्स हमारे lineage से पता चलते हैं, मतलब हमारा जो इनहेरिटेंस है किसी भी जीन का फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम फादर टू सन, फ्रॉम सन टू ग्रैंडफादर, ये जो जनरेशन वाइज जीन्स ट्रांसफर होते हैं उनका जो लाइन होता है, लाइन ऑफ इनहेरिटेंस, उसको बोला जाता है लीनिएज। लेकिन जब ये लीनिएज या फिर जब ये लाइन ऑफ ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, कभी कभी उसमें चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। नाउ द वर्ड रिकॉम्बिनेशन इटसेल्फ दो अलग अलग वर्ड से बना है। री मतलब अगेन, कॉम्बिनेशन मींस एज यू नो अरेंजमेंट। ओके, स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैन बी कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन। तो हमारे जीन्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होते हैं, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में होते हैं, लेकिन अगर उनमें कुछ चेंज हो जाए और कुछ नया कॉम्बिनेशन बन जाए उसको रिकॉम्बिनेशन बोला जाएगा।
It can be explained as the appearance of non-parental gene combinations due to crossing over. The appearance of non-parental gene combinations due to crossing over during meiosis 1. तो एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन होता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और हम लोग क्लास 11th में सेल डिवीजन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है आपका मियोसिस 1 में, ठीक है। इसको हम लोग प्रीवियस स्लाइड में भी देख चुके हैं। जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग उसको सेपरेट किए थे, दो अलग अलग इसमें डिवाइड किए थे बाय ड्रॉइंग ए लाइन, और उसमें हम लोग देखे थे कि 1% was ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो हमेशा रिकॉम्बिनेशन होते रहता है, जनरेशन टू जनरेशन जाते टाइम कुछ माइनर चेंजेस आ जाएंगे उसमें, ठीक है। But how much amount of recombination has taken place, that can be calculated. The formula is frequency of recombination is equal to number of recombinants by the total number of offsprings into 100. ठीक है, यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है, into 100 होगा। You can just eliminate out this, ये जो परसेंट दिया है इसको काट दीजिए आप लोग, ठीक है, बिकॉज इंटू 100 आप लोग कर लेते हैं तो वैसे ही परसेंट निकल जाता है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो वहां पे हम लोग जो 1.8 परसेंटेज निकला था, ठीक है। आई जस्ट क्लियर दिस आउट एंड गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसको नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। लेट्स गेट बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, ऑन दैट आई कैन शो यू हाउ दिस वाज देयर। तो यहाँ पे देखिए स्लाइड में आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन 1.3% दिया है। ये कैसे कैलकुलेट हुआ था? बाय द सेम फॉर्मूला। कितने नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स थे? बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू 100। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का रेट देखिए बहुत ज्यादा है, 37.2%। ये भी सेम ही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनदर कैरेक्टर वेयर इट हैज एक्सप्लेन्ड कि हाउ लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर होता है, दैट इज क्रॉस बी बिटवीन फीमेल एंड मेल। तो यहाँ पे दो अलग अलग कलर लिया गया है, एक व्हाइट एंड ए मिनिएचर फॉर्म, एंड द अदर वन इज द वाइल्ड फॉर्म। दो अलग अलग फॉर्म्स लिए गए हैं, सेम, दोनों का सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है, एक में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, सॉरी कम है, और दूसरे में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। मतलब हम जो पहला वाला एग्जाम्पल देखे थे, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, उसका लिंकेज ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कम है। लेकिन जो व्हाइट आई और मिनिएचर फॉर्म विथ वाइल्ड टाइप का देखे, उसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, लिंकेज कंपैरेटिवली कम है। So this is about the theory of linkage and about recombination. In the next class, students, we will move on to mutations. Okay, thank you.